Now we come to the next type of volcano, that is the fissure type of volcano. अभी fissure का meaning ही होता है cracks. तो जब eruption होता है and magma comes out not from a single vent like this, but it comes out from many cracks, जैसे कि shown in this picture. So you can see the lava or the magma coming out from cracks, and it is not only from one place. So such type of volcano is known as the fissure type of volcano. The molten material coming out with the eruption spreads on both the sides of the fissure. तो जो क्रैक है उसके आसपास जो है लावा फैल जाता है. एज अ रिजल्ट वोल्केनिक प्लेटोज आर फॉर्म. तो ये ऐसे टाइप ऑफ वोल्केनो की वजह से प्लेटोज फॉर्म होते हैं. Then the Deccan Plateau of India has also been formed due to such a type of volcanic eruption. So in India there is an example, the Deccan Plateau. It is in Maharashtra only. It is formed because of the fissure type of volcano. Now one more important thing you all should know about volcanoes is that according to the periodicity, यानी कि कितने टाइम तक वोल्केनोज एक्टिव रहते हैं या फिर काम करते हैं या फिर इरप्ट होते हैं, उसके बेसिस पे हम वोल्केनोज को 3 टाइप्स में वी कैन डिवाइड देम. ओके, नाउ इफ द वोल्केनो आर रेगुलर, every time they keep on erupting and in present times also, then such volcanoes are known as active volcanoes, जो इरप्ट होते रहते हैं. So those volcanoes which keep on erupting till the present time they are erupting, those volcanoes are known as active volcanoes. Example are Mount Fujiyama, Stromboli in Mediterranean Sea. Then when a volcano has not erupted since long, बहुत लंबे समय से एक वोल्केनो इरप्ट नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है अचानक एक्टिव, तो इट इज़ कॉल्ड अ डोरमेंट वोल्केनो. पहला था एक्टिव, जो कभी भी इरप्ट होते रहता है, चालू है उसका इरप्शन. सेकेंड है जो इरप्ट नहीं हुआ है लेकिन चांसेस आर देयर दैट इट कैन इरप्ट, इट कैन बिकम एक्टिव. तो सच अ वोल्केनो इज नोन एज डोरमेंट वोल्केनो. सच इज एग्जाम्पल इज द माउंट वेसुवियस इन इटली, काटमा इन अलास्का एंड बैरन आइलैंड इन इंडिया. बैरन आइलैंड आर इन द लक्षद्वीप. Then there is the last type, those volcanoes which have not erupted in the past since long and are not likely to erupt. जो बहुत लंबे समय से इरप्ट नहीं हुए हैं और आगे होंगे भी नहीं, दे आर कॉल्ड द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, यानी कि अभी बचे ही नहीं वोल्केनोज, एक्सटिंक्ट. सो दैट एग्जाम्पल इज माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया. सो ऑन दिस बेसिस देर आर 3 एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो. See now here in this textbook map you can see the plate boundaries, different plate boundaries. ये है अमेरिकन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट. सी हियर आर द बाउंड्रीज. तो जो अर्थक्वेक और वोल्केनोज होते हैं दोज आर मोस्टली कनेक्टेड टू दीज बाउंड्रीज. ओके, सो दे आर वेरी मच रिलेटेड टू दीज टेक्टोनिक प्लेट्स, दी वोल्केनोज एंड दी अर्थक्वेक्स. Similarly, when we see the borders of these plates, those are the earthquake prone zones of the areas. Now the part of the plate boundary which slides under the crust subdues, there is a loss of material. Such boundaries are called the plate consuming or subduction boundaries. एक पार्ट जो है प्लेट का वो एक के नीचे चला जाता है, तो दैट बिकम्स द सबडक्शन बाउंड्री. Okay, so in areas where new material is coming up onto the crust, they are called plate creating or constructive boundaries. सबडक्शन कभी होता है जब भी प्लेट्स एक दूसरे के नीचे चला जाता है और इट इज़ टेकन ओवर, एंड वेयर द प्लेट्स आर क्रिएटिंग देन दे आर नोन एज द कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज. नाउ बोथ प्रोसेसेस हैपन कंटिन्यूसली. तो ये जो प्रोसेस है प्लेट्स का कंटिन्यूसली चलता रहता है. And this is shown in 2.18. we will study during class. Now we see the effects of volcanoes. Now first is the loss of life and property. Then sometimes tsunamis get generated due to volcanic eruptions occurring below ocean floors.
तो बहुत सारे वोल्केनोज जो है ओशन फ्लोर पे भी है। तो जब वो वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो सुनामीज जनरेट होता है। देन डस्ट, स्मोक, ऐश, गैसेज, वाटर वेपर एक्सेट्रा रिमेन इन द एटमोसफेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब भी इरप्शन होता है ये सारी चीज़ें रिलीज होती है तो ये एटमोसफेयर में बहुत टाइम तक रहती है, तो एनवायरनमेंट को हार्म होता है। देन लैंड में बिकम फर्टाइल ड्यू टू वॉल्केनिक ऐश। तो ऑफकोर्स वॉल्केनो से जो ऐश निकलती है उसकी वजह से लैंड फर्टाइल हो सकती है। देन मैनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ लावा। तो लावा जो है मोल्टन रॉकी है, तो ये जब कूल होता है तो वी कैन हार्नेस मैनी मिनरल्स फ्रॉम दैट। न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस। We have seen plateaus also form because of volcanic eruptions, and island may also disappear because of the volcanic eruptions. Okay, so new land also can form, or sometimes islands also may disappear. Then lakes are formed at the mouth of craters. Craters यानी कि जो होल्स होते हैं वो जहाँ पे डेड वॉल्केनोज होते हैं उसके आसपास जो खड्डे होते हैं वहाँ पे रेन वाटर जमा होने से लेक्स भी फॉर्म हो सकते हैं। Here there is a picture of the barren island that is in Andaman and Nicobar. It is shown it was dormant. Dormant, that means it can be active anytime. So it was active in February 2017. Okay, so it is only 3 years before it became active and it was dormant for a long time. सो इसकी वजह से डस्ट, स्मोक, मड बहुत सारा कुछ है जो इरप्ट होता है एंड लावा ऑल्सो कम्स आउट। सो एक्चुअली द माउंटेन इज इनसाइड द सी एंड हियर देयर इज द आइलैंड वेयर द माउथ हैज़ कम आउट। सो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।